Hello biology lover. Today in this video we will study about body fluids and circulation. So here we go. What is body fluid? It's actually a medium of transport of nutrients, oxygen and other important substances in the body. Blood is the most commonly used body fluid in most of the higher organisms. But lymph is another fluid which also transports certain substances like protein and fats. So body fluids can be divided into two, that is intracellular fluid, fluid of each cell, that is inside the cell. What is there inside the cell? That is cytoplasm and nucleoplasm. And extracellular fluid which is present outside the cell. What is that? That may be blood, that may be lymph or CSF, cerebrospinal fluid, which is present at the outer covering of brain. Now blood and lymph. Let's discuss first about this. सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे हम स्पॉन्जेस सीलेंट्रेट्स लेते हैं, ये डायरेक्ट कंटैक्ट में होते हैं बच्चा एटमॉस्फेयर के. Thus, they do not require any circulatory system. They instead circulate water from the surrounding through body cavity. In more complex organisms, special fluids are used to transport these substances within the body. Blood and lymph are two types of fluid that act as a carrier in the body. Now, blood. First we discuss about blood. It is fluid connective tissue. बच्चा blood अकेला एक connective tissue है जो fluid है by nature, which is made up of a matrix which is called plasma. इसके अलावा कार्पस्कल्स. ब्लड कार्पस्कल्स कौन से होते हैं? जैसे एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स. It forms around 30 to 35% of the extracellular fluid. I told you about extracellular fluid, and is slightly alkaline, which is the pH is 7.4. In this, the plasma constitute approximately 55% of the blood. बच्चा जितना भी blood है उसमें 55% क्या होता है? उसका matrix होता है, that is 55%, and the remaining formed elements are 45%. अब मैं for sake of knowledge आपको बताना चाहती हूँ, the study of blood is hematology. And the process of blood formation जो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ is hemopoiesis, which takes place in bone marrow. Keep it in mind, the blood formation is hemopoiesis, which takes place in bone marrow. Generally the color of blood is red. pH I told you. Now blood is a false connective tissue. What is the reason? Because cells of blood have no power of division. याद रखिएगा बेटा, cells of blood have no power of division. Fibers are completely absent in blood. Matrix of blood is produced and synthesized by liver and lymphoid organs. Now first we discuss about plasma. It is a matrix of blood, as I told you. It's pale yellow in color due to bilirubin. You know, bilirubin is a pigment. Now along with this, it is composed of organic and inorganic substances, 90 to 92% water and 6 to 8% solutes in it. Now what are the solutes? Sodium ions, magnesium ions, calcium ions, glucose, sugar, protein, amino acids, hormones, cholesterol, lipids, and so on. Along with this, it also contains clotting factors. Now plasma protein, this is important. It is given in our NCERT that protein found in plasma are important. What are the plasma protein? Main plasma protein are fibrinogen, globulin, albumin. Now fibrinogen, which helps in clotting of blood, globulin, which give us defense, albumin, which maintain osmotic balance. Now I'm explaining you a little bit about this. Fibrinogen जो बच्चा हमारे blood clotting में help करता है, क्योंकि fibrin हमारा एक ऐसा प्रोटीन है जो soluble है blood के अंदर. But when it converted to fibrinogen, it helps in forming a meshwork which stop flowing of blood. जब अपने बॉडी में चोट लग जाता है तो फिब्रिन फिब्रिनोजन में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग होती है. नंबर 2, ग्लोबुलिन, जो क्या बनाता है इम्यूनोग्लोबुलिन. What is immunoglobulin? That is actually scientific terminology used for antibodies.
यू नो एंटीबॉडीज जो फाइट करती हैं एंटीजन से, और ग्लोबुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. सो साइंटिफिकली एंटीबॉडीज आर कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स. Now the last one is albumin. Now what is osmotic balance is? Osmotic balance is maintenance of salt and water content in our body, which is very important. Now function of plasma is it helps to transport and uniform distribution of heat all over the body. याद रखिएगा इस चीज को. नंबर 2 इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, अभी हमने डिस्कस किया. ब्लड का पीएच मेंटेन कर रहा है. प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस से भी बचा रहा है, दैट इज फिब्रिनोजिन. तो मैंने अलग अलग भी लिख दिया और आपको कंपाइल करके ई में वो भी लिख दिया है, राइट. ना एक टर्मिनोलॉजी आती है सीरम. होता क्या है बच्चा सीरम? प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को आप निकाल दोगे तो इट बिकम्स सीरम. अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर माइनस कर दीजिए, देन इट इज कॉल्ड सीरम, जो कि हमारे बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करने के काम में आता है. Now, as I told you, homopoiesis that is formation of blood. कैसे होता है सोच के देखो एक बार. So, सबसे पहले एक सेल होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स. क्या होते हैं बच्चा? देखो टर्मिनोलॉजी समझोगे ना. हिमाटो मतलब ब्लड, पोइटिक मतलब फॉर्मेशन करने वाले. वो सेल जिनके अंदर कोई वो नहीं है, स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है. अब ऐसे सेल दो में डिवाइड होते हैं. वन ऑफ द सेल रिमेन हीमोपोइटिक स्टेम सेल विच अगेन go through this process, but the another one is daughter cell become myeloid stem cell or lymphoid stem cell. Now what this function of myeloid stem cells and lymphoid stem cell? Myeloid stem cells form different type of cell like megakaryoblast, proerythroblast, myeloblast, monoblast. Now these form like megakaryoblast, याद रखना है बेटा आपको, forms platelets. Proerythroblast form erythrocytes. Myeloblast form different type of WBC. Monoblast form monocyte. Now what about the lymphoid stem cell? They form B cells and T cells. What are the function of B cell, T cells? Which helps to fight against infection, which give us immunity. Now formed elements. Formed elements में कौन कौन आता है? RBC, WBC, platelets. RBC मोस्ट अबेंडेंट है, जितने भी सेल्स हैं ब्लड के अंदर उसमें सबसे ज्यादा आरबीसी होते हैं. दे आर रेड इन कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है? कैरियर होता है ऑक्सीजन का. द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस इन रेड बोन मैरो इन द एडल्ट. नाउ शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर बाइकॉनकेव होता है. आप स्ट्रक्चर में देखिए कितना प्यारा दिखा रखा है. फर्स्ट वाला जो डायग्राम है, डिश शेप सेल्स विद द डायमीटर ऑफ अबाउट 7 to 8 माइक्रोन. शेप ऑफ आरबीसी स्लाइटली वेरिएबल, कुछ कुछ में अलग अलग शेप भी हो सकता है बच्चा. जैसे कैमल और इल्मा का हम बात करें तो एक्सेप्शनल है, जिनके अंदर ओवल आरबीसी होता है. नाउ देयर नंबर, हेल्दी इंडिविजुअल में हीमोग्लोबिन का कंटेंट होता है 12 to 16 ग्राम्स इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, जबकि मैन के अंदर इसका कंटेंट जो होता है कंपैरेटिवली ज्यादा होता है. फीमेल्स में बेटा हीमोग्लोबिन कम होता है बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, लेकिन मेल्स में ज्यादा होता है. मेल्स में आरबीसी का नंबर भी ज्यादा होता है, 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, जबकि फीमेल्स में 4 to 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है. नाउ it is given here, the number of RBC may vary depending upon the health factors of an individual and altitude where they live. अब क्या मतलब है altitude where they live? हिली रीजन में जो प्रेजेंट होगा, आप ध्यान रखिएगा, उनका आरबीसी का नंबर ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन कम है. अब उस ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए उनको अंदर क्या होना जरूरी है? आरबीसी का नंबर ज्यादा. इसलिए हम बोलते हैं वहां के लोग जो होते हैं वो पिंक पिंक होते हैं, उनके चीक्स जो होते हैं थोड़े पिंक पिंक होते हैं. दिस इज द रीजन, राइट. लेकिन आरबीसी का नंबर कम हो जाता है तो डिजीज होती है एनीमिया, एंड आरबीसी का नंबर अगर ज्यादा हो जाता है तो होती है पॉलिस्थीमिया, जो कि दोनों अच्छी नहीं है. आरबीसी एक सेल कितने दिन जिंदा रहता है? 120 days. नाउ डिसइंटीग्रेशन ऑफ आरबीसी क्या मतलब है? जब आरबीसी का डेड हो जाता है तो वो कहाँ जाएगा? लिवर में. वहां जाकर क्या होगा? उसका डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस प्रॉपर होता है लिवर के अंदर. वहां उसका जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन रिलीज करता है और वो आयरन वापस से चला जाता है कहां पर? अगेन काम आने के लिए. कुछ सब्सटेंसेस बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन भी होते हैं.
इसके अलावा जो मेम्ब्रेन है आरबीसी का उसे हम बोलते हैं बेटा गोस्ट, भूत। यस, आरबीसी की टूटी हुई मेम्ब्रेन को हम घोस्ट कहते हैं, जो कि कहाँ जाता है, स्प्लीन में, एंड इट गेट डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। नाउ WBC, these are known to be most active and motile constituent of the blood as well as lymph. They do not produce red color pigment in them, so they are colorless. They are nucleated and generally short-lived. The number of WBC is relatively lesser in number, 6,000 to 8,000 per millimeter cube. Now there are two types, granulocyte, agranulocyte. स्ट्रक्चर में दिख रहा है बेटा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ग्रैन्यूल फॉर्म में प्रेजेंट है मैट्रिक्स में, और इसमें देखो नहीं दिख रहा है agranulocytes में। नाउ व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं, जैसा मैंने बताया, ग्रैन्युलोसाइट जिसमें ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं, जो अगेन डिवाइडेड है 3 में, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। न्यूट्रोफिल मोस्ट अबेंडेंट है, बेसोफिल लीस्ट अबेंडेंट है। मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, मतलब कोई भी अगर फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आएगा तो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल उसको खा जाएंगे, दैट इज कॉल्ड फेगोसाइटिक। बेसोफिल जो होता है वो हिस्टामिन सीक्रेट करता है, सेरोटोनिन सीक्रेट करता है और हेपरिन सीक्रेट करता है। क्या फंक्शन है इसके, हिस्टामिन जो हमारा एंटीकोगुलेंट फैक्टर है, सेरोटोनिन जो हमें फील गुड देता है, वी समटाइम फील गुड बिकॉज ऑफ सेरोटोनिन, एंड हेपरिन हिस्टामिन एंटी एलर्जिक है, सेरोटोनिन फील गुड देता है, और हेपरिन जो है वो हमारा एंटीकोगुलेंट है। वेल, ये तीनों मिलकर जो है हमारी बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस देती हैं। मतलब जब हमें चोट लग जाता है या हमारी बॉडी में कोई डिसऑर्डर होता है तो वहां पर थोड़ा रेडनेस हो जाता है, रैशेस आ जाते हैं, बर्निंग फील आता है, दर्द होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। वर्ड याद रखना है बेटा आपको। इओसिनोफिल जो है रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन, जैसे बीओटी लिम्फोसाइट जो है वो हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स में काम आते हैं। अब ए ग्रेनुलोसाइट, ये भी 2 तरह का होता है, वन इज लिम्फोसाइट जो भी हमने डिस्कस किया, बी सेल्स एंड टी सेल्स जो कि दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यूनिटी के लिए, एंड मोनोसाइट, ये लार्जेस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ WBC है बट सबसे कम। मेच्योर मोनोसाइट्स जो होते हैं उन्हें मैक्रोफेज कहते हैं, जो कि अगेन क्या काम करते हैं, टू किल फॉरेन पार्टिकल्स। नाउ आरबीसी और WBC में डिफरेंस बेटा ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें नथिंग टू बी एक्सप्लेन यू, बट दीज आर वेरी सिंपल। उनका नंबर दे रखा है, उनका स्ट्रक्चर दे रखा है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है नहीं है, फंक्शन दे रखा है, सो दिस इज ऑल। नाउ थ्रोम्बोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, दीज आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट। बताया मैंने आपको, बोन मैरो के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओवल डिश शेप हो सकता है, और कई बार न्यूक्लियस नहीं होता। प्लेटलेट्स कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ग्रैन्यूल्स, ट्यूब्यूल्स, फिलामेंट्स, ये सब प्रेजेंट होता है, और इसका जो नंबर होता है वो 1,50,000 से लेकर 3,50,000 होता है पर क्यूबिक मिलीमीटर, राइट। रिडक्शन अगर होता है अगर इनके नंबर में, तो इसका मतलब क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, बहुत दिक्कत आता है, चोट लगने पर क्लॉटिंग नहीं होगा तो सारा का सारा ब्लड ऊज आउट हो जाएगा। इनका लाइफ स्पेन कितना है, 7 to 12 डेज। जो फॉर्मेशन होता है थ्रोम्बोसाइट का उसे थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट, ब्लड प्लेटलेट, दैट इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। Now mainly this function of blood एक हम एक confined way में बात करते हैं, तो it regulate body temperature, it carries oxygen from the lungs to different part of the body, it carries carbon dioxide from body cells to lungs, it carries digested food from small intestine to all part, it carries hormones from endocrine gland, it carries waste product like urea from the liver to the kidney for excretion, it defend against infection. On average, a healthy man has about 5 liters of blood in the body, while women has about 500 ml less. अभी हमने पहले डिस्कस किया. So total blood is about 60 to 80 milliliter per kg of body weight. Now blood growth. लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने बोला कि हमारे आरबीसी के ऊपर कुछ एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं. अब वो एंटीजन का नाम क्या दिया उन्होंने, सिंपल सा अल्फाबेट दे दिया A B.
फिर उन्हीं के स्टूडेंट आए जिन्होंने कैस्टिलो एंड स्टीनी, जिन्होंने ये बोला ऐसा भी तो हो सकता है वो एंटीजन दोनों एक ही में प्रेजेंट हो, तो ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। या ऐसा भी तो हो सकता है कोई भी एंटीजन ना हो, तो ब्लड ग्रुप हो गया 0। अब 0 तो कैसे बोले, जब हमने ए बी अल्फाबेट ले लिया तो हमने बजाय 0 के क्या बोल दिया, ओ ब्लड ग्रुप। सो हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप हो गए, ए बी ए बी ओ। अब जो भी बेटा एंटीजन आरबीसी पे प्रेजेंट होता है वही ब्लड ग्रुप होता है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन जो भी एंटीजन प्रेजेंट होगा उसके अपोजिट एंटीबॉडी होती है। जैसे ए ब्लड ग्रुप सपोज मेरा है तो मेरे पास एंटीबॉडी बी के लिए होगी। बी ब्लड ग्रुप किसी एक जने का है तो उसके पास एंटी ए होगा। जिसके पास ए बी दोनों एंटीजन है उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। और जिसके पास ओ ब्लड ग्रुप है उसके पास दोनों एंटीजन्स होंगे, सॉरी एंटीबॉडीज होंगी। नाउ किसको हम ब्लड दे सकते हैं, मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मैं किसको दे सकती हूँ, ए वाले को दे सकती हूँ और ओ वाले को दे सकती हूँ। ओ वाले को क्यों दे सकती हूँ, क्योंकि ओ कोई एंटीजन होता ही नहीं है, राइट। बी वाला किसको दे सकता है, बी को और ओ को। ए बी वाला किसको दे सकता है, सबको। व्हाट इज द रीजन, क्योंकि ए बी वाले के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती। और ओ वाला सिर्फ और सिर्फ किसको दे सकता है, ओ को। ओ वाला जो है बेटा वो यूनिवर्सल डोनर है, वो सबको दे सकता है, राइट। और ले किससे सकता है, वो सिर्फ ले सकता है ओ से। और ए बी वाला सबसे ले सकता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, राइट। सो ये अभी मैंने आपको समझाया है सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप। लेकिन हमने सुना है कि ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव क्या है, दिस पॉजिटिव इज एक्चुअली RH एंटीजन। जैसे ए और बी एंटीजन है वैसे ही रीसस मंकी में देखा एक और एंटीजन होता है जिसका नाम दे दिया रीसस मंकी से RH एंटीजन। बाद में पता चला ये RH एंटीजन तो ह्यूमन बींग्स में भी है। तो जिसके अंदर ये एंटीजन प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव, और जिसके अंदर ये एंटीजन नहीं होता उसके अंदर एंटीबॉडी होती है उसे बोलते हैं नेगेटिव। तो सपोज मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव, तो मेरे अंदर 3 एंटीजन्स हुए, कौन कौन से, ए बी एंड RH। सपोज मेरा ब्लड ग्रुप है O नेगेटिव, तो मेरे अंदर कितने एंटीजन हुए, 0, क्योंकि O इज नो एंटीजन, नेगेटिव इज नो एंटीजन। सो अगर RH पॉजिटिव फादर है और RH नेगेटिव मदर है तो बेबी का चांसेस है कि बेबी का डेथ हो जाए, प्रीमेच्योर डेथ हो जाए। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मदर की बॉडी से आ रहा है RH नेगेटिव मतलब एंटीबॉडीज, और फादर की बॉडी से आ रहा है RH पॉजिटिव मतलब एंटीजन। एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में कोगुलेट कर जाएंगी तो बच्चे को एक डिजीज हो जाएगी। दैट डिजीज इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रो मतलब RBC, ब्लास्टोसिस मतलब इज अ स्टेज, किसकी स्टेज, एम्ब्रियो की स्टेज। फेटालिस मतलब बेबी, छोटा बेबी, जब वो यूट्रस के अंदर है तो उसे फीटस कहते हैं बेटा। तो टर्मिनोलॉजी क्या हुई, डिजीज का क्या नाम हुआ, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये कब होता है, जब RH नेगेटिव मदर होती है और RH पॉजिटिव फादर होते हैं। नाउ कोगुलेशन ऑफ ब्लड, व्हाट इज दैट, आपकी बॉडी में कोई चोट लगती है तो रिलीज होता है एक केमिकल, उस केमिकल को हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो क्या करता है, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। नाउ दिस थ्रोम्बिन कन्वर्ट फिब्रिनोजिन टू फिब्रिन। मैंने आपको बताया था बच्चा, फिब्रिनोजिन जो है वो हमारे ब्लड में एक प्रोटीन है, राइट। वो प्रोटीन जब कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में तो सॉल्युबल प्रोटीन से इनसॉल्युबल प्रोटीन जब बन जाता है तो कोगुलेशन हो जाता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपके कहीं पर कट लगा है तो उस कट वाले रीजन में अंदर की तरफ बेटा एक केमिकल रिलीज होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। वो थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव एंजाइम को थ्रोम्बिन एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करता है। ये एक्टिव एंजाइम थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में, जिसके वजह से ब्लड कोगुलेशन हो जाता है। Now, lymph, as I told you, is a colorless fluid containing lymphocytes and provide immune response to the body. इसमें भी बच्चा नेटवर्क होता है, जैसे हमारे हार्ट में नेटवर्क में क्या होगा, हमारे नेटवर्क में होगा आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इसमें भी होता है। लेकिन इन वेसल्स को हम लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। फॉर्मेशन कैसे होता है लिम्फ का,
कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा फ्लूइड बाहर आ जाता है। वो फ्लूइड जो है वो एक जगह पर इकट्ठा होता है जिसे हम ECF कहते हैं। अब बाहर निकलने के बाद लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर करने के बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे जो इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा फैट जो प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट भी होता है। इसके अलावा टिश्यू को, सेल को मॉइस्ट करके रखता है। सो लिम्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में बच्चा, नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स हैं, जैसे थाइमस, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस, वी डिस्कस पेयर्स पैचेस, स्प्लीन अभी हमने पढ़ा, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। सो दीज आर ऑल लिम्फ नोड्स। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। एक बार प्लीज आप नोट कर लीजिएगा, जो बहुत सिंपल सा है, इसमें मुझे एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। दिस इज आई हैड गिवन जस्ट बिकॉज ऑफ मेकिंग योर नोट्स. Now this is all in this video. In the next part we will discuss about very important part, that is heart. Thank you so much.